तालियों की गड़गड़ाहट। और कार्यक्रम में जो एक खूबसूरती आती है वो तालियों से ही आती है। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीतारूढमन्ताय गुणातीताय एकदन्ताय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Okay, ladies and gentlemen, let's give it for Namrata. Such a sweet smiling face. और हमारे कार्यक्रम की बहुत ही प्यारी सी और हंसते हुए मुस्कुराते हुए शुरुआत हुई। मैं भारत हूँ. This event is organized by SCL Charitable Trust, powered by Krishna Heritage, supported by Lakshmipati Sarees. This session is curated by Future 9 and our venue partner is ZNG. And this beautiful dance by Namrata was presented by Art of Living. Thank you. And now may I please call upon Mr. Gaurav Dugal on stage. Our guests have arrived, they are outside and we are just getting them in. Today we are going to have amongst us, of course, Dr. Subramaniam Swamy, Shri C.R. Patil, Shri Vineet Goenka, and Mr. Virendra Sharma. And they all have arrived.
and all our dignitaries have gone out to receive them. Just a matter of few minutes and they will be in with us. The dignitaries who are going to be amongst us needs no introduction. And they have arrived. So can I please request everyone, let's put our hands together for them. We have Dr. Subramaniam Swamy, a well-known economist, hard-work professor and senior BJP leader. Shri C.R. Patil Saab, Member of Parliament, Navsari Surat. Shri Vineet Goenka ji, Governor Council Member, CRIS Ministry of Railways and former National Co-Governor of IT Cell BJP. Mr. Virendra Sharma, the State in Charge of Bharatiya Janata Yuva Morcha Rajasthan. तालियों की गूंज होनी चाहिए. It's a matter of privilege for all of us to have such big dignitaries amongst us. I request all our guests to please settle down, all our audience guests to please settle down. And now I request our dignitaries to please come on the stage for lamp lighting. मैं request करती हूँ Dr. Subramaniam Swamy, Shri C.R. Patil साहब, Shri Vineet Goenka जी और Shri Virendra Sharma जी कि आप please मंच पर पधारें. भारत माता की जय. भारत माता की जय. और भारत माता के ही सामने दीप प्रज्वलन होने वाला है. Okay, the lamp is being lit, seeking blessings of our very own भारत माता. और इसी थीम पे आज का हमारा जो कार्यक्रम है, मैं भारत हूँ. I request our dignitaries to please take a place on the stage itself. So we request you to please come and sit on the sofas. Thank you, sir. And now I'd like to request Shri C.R. Patil ji to please felicitate Dr. Subramaniam Swamy. Audience, can we hear it for them? Sir being presented with the shawl and memento. Thank you, sir. And now may I request Shri Daulalji Saraswat to present the memento to Mr. C.R. Patil.
so making his way on the stage. और आप सबको एक ही काम करना है आज पूरे एंथुजियाज्म के साथ हमारे जो कार्यक्रम में अलग अलग चीजें होने वाली उसके लिए तालियां ही बजानी है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Thank you, sir. And may I please call upon Mr. Gaurav Duggal to present the memento and shawl to Mr. Vineet Goenka. Mr. Gaurav Duggal presenting the memento to Mr. Vineet Goenka. Thank you, sir. And Mr. Murli Sharma presenting the memento to Mr. Virendra Sharma. Okay, we have Mr. Murli Sharma over here on the stage. Thank you, sir. Mr. Sia Patil had some really important urgency which he needed to attend, but we are really thankful कि इसके बावजूद वो यहाँ पे आए, हमारे पास थोड़ा समय बिताया, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ. Thank you, sir, and we hope that आपका जो भी urgent need है, आप उस चीज़ के लिए भी उतनी ही डेडिकेटेडली अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरा करें. Thank you so much, sir. May I please request Mr. Dakshesh Thakkar, Mr. Jignesh Patil and Mr. Iyer to please come on the stage. Mr. Dakshesh Thakkar, Mr. Jignesh Patil and Mr. Iyer. Ladies and gentlemen, can we hear it for them? Mr. Shyam Sundarji Saraswat, I request you to please come and join us on the stage. And Mr. Shyamji Saraswat to kindly come and join us on the stage. Mr. Shyam Sundarji Saraswat, Mr. Shyamji Saraswat and Mr. Meghji Saraswat to kindly join us on the stage. Thank you, sir, for your cooperation. Mr. Jignesh Patil, I request you, sir, to please come and join us on the stage. Jignesh ji, please, sir, stage पर आप को मैं बुलाना चाहती हूँ. Now we have all the dignitaries on the stage. So I request Mr. Gaurav Duggal. Well, this person needs no introduction in Surat, a multi-dynamic personality and the most important, a compassionate human being. He is the CEO of Shri Surati Mod Vanik Sarvajanik Trust, and under his guidance, there are many schools and hospitals that operate. So may I please request Mr. Gaurav Duggal, sir, I'm sorry for the tongue twister, Mr. Gaurav Duggal, sir, to please come forward and present the welcome speech. Can we hear it for Mr. Gaurav Duggal? A very warm good afternoon to all of you in the audience and the wonderful honorable guests that we have here with us, national leaders. We give you a very, very warm welcome. आपका सूरत में स्वागत है અને આપણે સુરતીઓ તમારું એક ખૂબ તાળીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરશું. प्रोग्राम हमारा थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन उसके लिए हम खेद चाहते हैं.
we're here in a smaller number because, sir, we have a lot of exams and board exams going on, when we have wonderful number of students who wish to join, but they hopefully will be able to join right after they finish exams. So we thank you all, this wonderful enlightened audience that is here for the wonderful topic, मैं भारत हूँ. राष्ट्र के लिए राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम की हम बात करते हैं. यहाँ पे भिन्न भिन्न संप्रदाय से लोग आते हैं. Whether it is about cultures, it is about diversity, it's about different religions and people with different spiritual backgrounds. India is a nation that celebrates diversity, and when we all come together, अगर हम national anthem की बात करें या national song की बात करें या हम national figures की बात करें, जब हम nationalism लेके आते हैं सामने, हम अपने व्यक्तित्व जीवन के अंदर as individuals, as leaders, as politicians, as educationists, as researchers, when we come together collectively with our strength, with one unity, that is one India and oneness, that is what brings us forward to this wonderful topic called nationalism. We're going to hear some wonderful dignitaries. मैं आपका बहुत समय ना लेते हुए आप सबको कहूँगा कि इस उम्दा प्रोग्राम को आप खूबसूरती से इसको एंजॉय करें, और आपका इंटरैक्टिव समय भी आएगा जहाँ पे आपको प्रश्न करने का एक मौका मिलेगा. सो ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए सब डिग्निटरीज को एक वार्म वेलकम देते हुए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अर्ज एंड enjoy this program and enrich yourselves. We're all here together to celebrate nationalism, and it's a wonderful opportunity that we have such wonderful dignitaries and enlightened person with us amongst us today in this wonderful hall. And I thank all the people of the university to offer this opportunity and this wonderful auditorium to us to conduct this program. I thank you one and all and welcome all of you. Thank you, sir. Thank you so much. And very beautifully, he had compiled everything, what's going to happen for today's event, मैं भारत हूँ. A very beautiful compilation, sir. And may I please request Mr. Sampath Saraswat, who is the National President of SCL Charitable Trust, to please come forward. Let's hear it for Mr. Sampath Saraswat. भाई जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए. भारत माता की. आज के इस प्रांगण में पधारे गए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक सम्मान करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं. हमारी बात को तवज्जो देते हुए, हमारा मान सम्मान रखते हुए हमारे बीच में प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे बीच पधारे. उनका भी खूब खूब अभिनंदन करना चाहता हूं. आप लोगों के द्वारा ताली बजाकर आप स्वागत करेंगे. उनके बाद श्री विनीत जी गोयनका हमारे बीच में पधारे हैं. उन्होंने भी अपना कीमती समय हमें दिया. उनके लिए भी उनका खूब खूब अभिनंदन करना चाहता हूं. पाटिल साहब जो कि हमारे बीच में अभी आकर जा चुके हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट इस प्रोग्राम को लेकर रहा. उनका भी खूब खूब अभिनंदन करना चाहता हूं. वीरेंद्र जी शर्मा जो कि राजस्थान जयपुर से पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ. ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बहुत संक्षिप्त रूप से मेरे मन की पीड़ा आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ. सर, गूगल की इस दुनिया में 21वीं सदी में जहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ साथ नॉलेज हमारी फिंगरप्रिंट पे है, उसके बावजूद एक शांति प्रिय देश इस भारत के अंदर कुछ समय से, पिछले काफ़ी सालों से कह सकते हैं, या कुछ समय से कभी कभी एक आम आदमी को लगता है कि कहीं ना कहीं असंतुलन हो रहा है. जिस असंतुलन की वजह से आम आदमी को तकलीफ आ रही है, वो तकलीफें वो आदमी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, उम्मीद नहीं करता है. उस बात के पीछे जो मेन तकलीफ हमें लगी वो ये थी कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है. मैं भारत से क्यों प्यार करूं, भारत मेरे लिए, भारत ने क्या किया है, मैंने भारत के लिए क्या किया है. इस विषय को ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉपिक जो है वो तैयार किया था, मैं भारत हूँ. यानी प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो व्यक्ति अपने विचारों के साथ साथ अपने कार्यों में भी ये ध्यान रखे कि मेरी देश के प्रति क्या जिम्मेवारी बनती है. कुछ समय पहले जब बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उनसे पूछा गया कि अमेरिका इतना समृद्ध क्यों है. तब उन्होंने कहा था कि एवरी सिटीजन ऑफ अमेरिका इज लाइक ए सीसीटीवी कैमरा. यानी उनकी नज़र जो है वो देश की सुरक्षा, गतिविधि और प्रत्येक एक्टिविटी पे प्रत्येक व्यक्ति की नज़र है. इसी तरह से हमें सबको संवेदनशील होकर रहने की जरूरत है इस देश के प्रति. ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा. और एक हमने छोटा सा एक आपको देश के बारे में, जैसा पहले हम बता चुके थे, परंतु अतिथियों के बीच में हम एक बात आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मैं भारत बोल रहा हूँ और वो भारत अपने आप में अपनी पीड़ा आपके सामने व्यक्त करना चाहता है. मैं चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर वो 2-3 मिनट का एक वीडियो जो है वो आपको हम दिखाना चाहते हैं, जिसमें भारत अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है. मैं भारत बोल रहा हूँ.
से कथा समझना लेना, तुम अपनी आधुनिकता को सभ्यता समझना लेना। तुम कब महसूस करोगे कि मेरी आंखें नम है, संवेदनहीन हुए तुम, किस बात का मुझको गम है। सच में पुरखों ने तुम्हारे आजादी मुझे दिलाई, उनके बलिदान की कीमत क्यों तुम्हें समझना है। जो सपनों ने देखे तुम उनको भूल गए हो, निज निहित स्वार्थ में बढ़कर यूं मत में भूल गए हो। सीमित है मेरे संसाधन, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, इस बढ़ती आबादी का मैं कैसे बोझ उठाऊं। हर कदम पे तुमने केवल दोहन ही मेरा किया है, वन खनिज संपदा नदियां मेरा सर्वस्व लिया है, मेरा सर्वस्व लिया है, मेरा सर्वस्व लिया है। बदले में मुझे दिया क्या यह तंगी और बदहाली, जहरीली हवा प्रदूषण और धुएं की चादर काली। मैं युगों से सबकी पलकों पे रहा करता था, सोने की चिड़िया मुझको संसार कहा करता था। जब मैं आजाद हुआ तब 36 कोटि जनता थी, उपजाऊ भूमि थी, जल था भरपूर मेरी क्षमता थी। अब 1.5 अरब के लगभग जनसंख्या पहुंच रही है, निर्वाह करूं मैं कैसे, मेरी सामर्थ्य नहीं है। इस बढ़ती आबादी का देखो क्या असर पड़ा है, बेरोजगारी, महंगाई, हिंसा, अपराध बढ़ा है। बढ़ गई जरूरत सबकी, बढ़ गई है चादर छोटी, कैसे मैं काम दूं सबको, कैसे दूं सभी को रोटी। मेरी क्षमता से ज्यादा यूं बोझ न मुझ पे डालो, जनसंख्या करो नियंत्रित, मेरे बच्चों मुझे बचा लो, मेरे बच्चों मुझे बचा लो, मेरे बच्चों मुझे बचा लो। मैं भारत बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। इंडीड दिस इज़ लाइक अ कंपैरिजन बिटवीन हमारी खुद की मम्मी और भारत माँ, कि वो सेल्फलेसली देती रहती है और हम उसे एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। एंड वन डे सडनली वी रियलाइज देयर इज अ वेकअप कॉल दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट, एंड द सूनर द बेटर। एंड विद दिस थॉट may I please call upon Shri Vineet Ji Goenka to come forward and give his insights on our today's topic, मैं भारत हूँ. Can we hear it for Shri Vineet Ji Goenka? नमस्ते। मेरे पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, मेरे अनेक साथी मित्र, मैं सबका नाम नहीं लेता हूँ, जो मंच पे है और नीचे है, आप सभी के सामने बोलने का मौका मिला है। सर, देयर इज अ प्रॉब्लम। आई हैड प्रिपेयर्ड अ वेरी नाइस स्पीच टू स्पीक, देन यू एंटर्ड द रूम एंड आई फॉरगॉट एवरीथिंग। इनकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी है, ऐसी है कि भूल जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने वीडियो देखा पीछे का, तो मैंने कहा वो उस भाषण को छोड़ते हुए कुछ और बात करेंगे, और अचानक याद है कि यहाँ पे गूगल तो चलता होगा सभी का, तो मैं भाषण में देखते हुए एक इंटरैक्शन थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि मेरी बात जो है मैं इंटरैक्शन से रख सकता हूँ कि अगर हम पृथ्वी को छोड़कर अगर स्पेस सेंटर में बैठे और हम पृथ्वी के ऊपर जाएं, तो
तो मनुष्य ने बनाया हुआ क्या हम देख सकते हैं पृथ्वी से? ताजमहल तो सर दिखता नहीं, बहुत छोटा है ताजमहल। एयरपोर्ट भी नहीं दिखता मैडम, बहुत छोटा होता है। या ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसने बताया? ऑर्गेनाइजर्स के पास से टिकट ले लेना आपको वहां जाने के लिए। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मेरे ध्यान में आया कि जो दिखा रहे थे, उसकी लेंथ कोई बता सकता है हमको कितना किलोमीटर होगी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? 1500 मील है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी सर, हाउ मेनी इयर्स डिड इट टेक टू मेक दैट ग्रेट वॉल? कितने साल, कितने दशक बने? आप कोई सोच सकता है कितने साल लगे 1500 मील बनाने के लिए? आई वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड सर इट टुक 180 ईयर्स, 180 साल। साधारणतः एक जीव, एक मनुष्य अपने जीवन में 30 से 35 साल तक बहुत एक्टिव रहता है। डॉक्टर स्वामी जैसे जैसे अलग कोई लोग होते तो 70-80 साल तक भी रहता है। सर कितना भी विजनरी होगा तो 150 साल, 180 साल नहीं रहता है। एक किस्से कहानियों में होता है, एक बंदा सोचता है कि मैं चाइना को मंगोल के अटैक के खिलाफ एक दीवार बनाऊंगा। दीवार इतने मजबूत होगी, कोई छोटी दीवार नहीं है, 8 इंच की कोई दीवार नहीं सर, पीडब्ल्यूडी ने तो बनाई भी नहीं है, बिल्कुल हार्ड। इट इज मोर देन 1800 माइल्स वॉल, थिक वन, एंड देयर आर नो स्टोन्स। द स्टोन्स हैव बीन बॉट फ्रॉम हियर एंड देयर, 50 किलोमीटर्स ऑन डोंकीज, गधों के ऊपर, हाथियों के पीछे, घोड़ों के पीछे से लाए गए हुए पत्थर थे। 180 साल तक बना। सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे का टास्क फोर्स मेंबर रहा हूं। हम रोड बनाते हैं यहाँ से सूरत से मुंबई तक, केवल 210 किलोमीटर का बना, जहाँ पे एलाइनेशन टूट जाता है, जबकि कंप्यूटर्स भी है, कैड है, जीपीएस है, सारा है। 1800 किलोमीटर कैसे जोड़ा गया? यहाँ से अगर हम निकले 1800 माइल तक निकालने के लिए जाए तो शायद हम कलकत्ता की तरफ कहीं भी जाएंगे। भाषा अलग अलग, कोई वॉकी टॉकी नहीं था, मोबाइल नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, उसके बावजूद एक दीवार बनती है, सैकड़ों साल तक खड़ी रहती है। ध्येय क्या था? तो ध्येय खाली एक ही था कि मेरे देश पे कोई परतंत्र का कोई अटैक नहीं करे। Nobody should attack my country. What a fantastic thought. Generations after generations made that. I happened to ask my grandfather, sir, and this is painful. You're senior to me, sir. Someday you explain to me. If we go to the west, अगर हमारे पश्चिम की तरफ जाए तो खैबर का दर्रा है, द खैबर पास, जहां से सबसे पहले गजनी अंदर आया, या जो भी अंदर अलेक्जेंडर अंदर आया, पहले आया। परतंत्र के हर चढ़ाई वहां से हुई थी। तोरा बोरा की पहाड़ियां सर सीधी खड़ी खड़ी है, और पहाड़ के ऊपर सैकड़ों, लाखों, हजारों पत्थर वहां पे पड़े हुए हैं, कंकर पड़े हुए। उस पहाड़ के बीच का गैप जो है सिर्फ 18 मील का है सर, 18 माइल्स। एवरी इंट्रूडर हैज कम फ्रॉम देयर। टिल डेट आफ्टर माय बर्थ आई हैव बीन थिंकिंग ओनली वन थिंग सर, व्हाई वी हैव नॉट मेड वन सिंगल वॉल बिटवीन दैट टू rocks. There were stones available. There should have been people who would just sit there. आने वाले हर आक्रमण को केवल पत्थर से मारते, मिसाइल के से मारते तो उसका सिर फूट जाता। 18 माइल्स बना नहीं सकते। शायद कहीं ना कहीं तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की कमी थी। We were unable to envisage what will happen. परिणाम यह हुआ सर कि सूरत के पास में वेरावल है, वेरावल में सोमनाथ जी का मंदिर है, सोमनाथ जी के मंदिर के अंदर एक गजनी नाम का गुंडा आता है, इतना बड़ा नुकसान करता है। अटल जी का एक स्पीच मुझे सुनने का मौका मिला था, यूट्यूब पे आप भी सर्च करें तो मिल जाएगा। जब वो 1977 से 1980 के बीच में विदेश मंत्री थे आपके साथ में, मोरारजी भाई के कैबिनेट में, उन्हें अफगानिस्तान जाने का मौका मिला। और अटल जी कहते हैं कि उनको अनुभव हुआ उस समय, उनको लगा कि भाई मैंने जाके देखना चाहिए वो गजनी कैसा है, वो जगह कैसी है कि जिसके अंदर से ऐसा आदमी पैदा हुआ, हजारों मील चल के जाता है, सूरत के पास वेरावल में पहुंचता है और अस्मिता को खंड खंडित करता है। किसी धर्म की बात नहीं सर, ये दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट माई प्राइड। उन्होंने वहां के विदेश मंत्री को कहा कि मुझे जाना है, और उन्होंने कहा कि दिस प्लेस इज नॉट नोन, इट इज वेरी ट्राइबल, TRIVAL, ट्राइबल, वेरी 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 ट्राइबल, नॉट टू बी सीन। इन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं वहां जाऊंगा, देखूंगा। कोई इतिहास में वहां पे कोई लेख नहीं सर, वहां का कोई लोकल गुंडा हिम्मत करता है, क्रॉस करता है, यहां आता है। और आज मैंने फिर ये वीडियो देखा, डॉक्टर स्वामी का चेहरा जिसके कारण मैं भाषण भूल गया, फिर वीडियो देखा, कुछ याद आया।
1800 माइल का वहां पे वो वॉल बनाते हैं और 18 मील का बना नहीं सकते। हमारी सोच में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द थिंकिंग? देयर इज सम प्रॉब्लम इन अवर थिंकिंग, वी डोंट हैव दैट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। सर वो अंदर आता है, उसके पीछे से कोई दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, और आज मेरा देश केवल 40% है। My land is not even 40% of the original land which I had that time. My brothers are divided as Pakistanis or as Bangladeshis. A total lack of strategic thinking. And this does not stop in the Mughal era, does not stop in the British era, and neither it stops in the Nehruvian era. पता नहीं भाई साहब को क्या प्यार था, यूं नहीं चले गए सर। आज तक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। The entire socialist thinking which he had. सपने में रहते थे, ड्रीम्स। फिर भारत कैसे जोड़ेंगे? फिर बीच में विवेकानंद का स्मरण होता है कि भारत कैसे जोड़ेंगे। तो विवेकानंद जी ने एक प्रवास किया, कलकत्ता से निकले, राजस्थान में खेतड़ी तक गए, खेतड़ी महाराज ने मदद की, दक्षिण में गए, वहां पे उपासना की, विदेश गए, विदेश में बात की। सब कुछ हिस्ट्री में, अगर मैं अभी रिपीट करना चाहूँ तो 2-3 घंटा लगेगा, हमको सबको डॉक्टर स्वामी का भाषण सुनना है। प्रवास किया और भारत को एक जगह लाने की कोशिश की, नवचेतना लाई भारत के अंदर। ऐसा युवक जिसने अपने जीवन में 32 साल 35 साल की उनकी उम्र थी जब उन्होंने समाधि, तभी 32-35 साल के ऊपर नहीं थी उनकी उम्र, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन 39 की उम्र थी, बजबज में उतरे थे वहां पे। उसमें उन्होंने शिकागो का भाषण किया, यूरोप में घूमे थे, उनके प्रेरणा से कई सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे खड़े हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भी एक प्रेरणा उनके पास से आई। पर ऐसे बेलूर मठ का रंग बदली करे ऐसा कोई बहन कहती है तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत पीड़ा होती है। ऐसे महान आदमी के मठ का कलर बदली करके व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव इट? लेट अस फाइट द एग्रेशन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सर, आई एम राइटिंग अ बुक, डेटा स्लेवरी द न्यू ईयर वॉर। पहले मैं जब पढ़ता था, डॉलर दिखता था तो डॉलर के पीछे सर ना लिखा हुआ था, वी ट्रस्ट इन गॉड। मैं सोचता था कि गॉड का फुल फॉर्म क्या है। बचपन में हर चीज का फुल फॉर्म देखने का आदत था तो याद नहीं था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर टास्क फोर्स में आया, भारत के किसी बड़े अधिकारी से मिलने का मौका मिला, फिर सीआईए के किसी बड़े अधिकारी से मिलने का मौका मिला, और उसने मुझे हाउ डज सीआईए विद गोल्ड, ऑयल एंड ड्रग्स। किसी भी देश में जाओ, वहाँ का तेल, वहाँ का सोना और वहाँ के यहाँ पे ड्रग्स मिला के वहाँ के लोगों को कर। That was their entire modus operandi. Now they have changed the version, sir. Oil has become secondary. Now they do their own anti-narcotics and other law and enforcement bodies. We have our police who are very strong. We don't allow them to sell drugs. अब वो डेटा लेके आते हैं सर, and it's become the new war. मैं दिल्ली उतरता हूँ, दिल्ली में उतरने के बाद मुझे तुरंत एक मैसेज मिलता है, ये कार करोगे तो 30% डिस्काउंट और ये कार का सर्विस लोगे तो 40% डिस्काउंट। How do they know that I have landed in Delhi, sir? That means trying to do a surveillance. My data has been taken out. आप में से कई लोगों ने एंटीवायरस खरीदा होगा, 4000 रुपए का एंटीवायरस खरीदा होगा। एंटीवायरस खरीदते हैं, उसमें लाइसेंस होता है। अगर दूसरे कंप्यूटर पे एंटीवायरस डालने की कोशिश करेंगे तो चलता नहीं है। लेकिन अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े धड़ल्ले से कई लोग जानबूझ के इग्नोरेंटली और समबडी डिलिबरेटली वो लेते हैं, चलाते हैं, और 5 साल के बाद में उनको एक नोटिस आती है कि आप हमारा लाइसेंस खरीदिए, लाइसेंस नहीं खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर केस करेंगे, आपको कोर्ट में लेके जाएंगे। कॉर्पोरेट गुंडेज़म, द डेटा स्लेवरी इज कमिंग अगेन। अब मैं इसको ना उससे जोड़ने की कोशिश करता हूँ, उस वॉल से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। शायद उस समय पे मेरे दादाजी, परदादाजी, मेरे एंसेस्टर जो होंगे, शायद वो एनविसाइज नहीं कर पाएंगे। शायद वहां का जो राजा था उसने सोचा कि ये मेरा प्रॉब्लम है, और यहाँ के राजा ने सोचा कि उसका प्रॉब्लम है। जब 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी तब सोचा था शायद ये प्रॉब्लम केवल कलकत्ता के वहां पे है, फोर्ट विलियम्स का प्रॉब्लम है। व्हाट वी हैव टू डू, किसी ने फाइट नहीं किया होगा। प्लासी के युद्ध के अंदर सर देखने वाले ज्यादा थे और लड़ने वाले कम थे, बिकॉज द फाइट वॉज बिटवीन द किंग एंड द ब्रिटिशर्स। देखने वाले एक चीज भूल गए कि अगर वो आके राज करेंगे तो राज तो हम पर ही करेंगे। So we'll have to learn from these 2-3 incidences of history, be it the Tora Bora, the cyber
hint, be it with the Plassey war. Now they will not come with guns. अब बंदूक लेके नहीं आ गए. द मिलिट्री कॉलोनाइजेशन, द काइनेटिक वॉरफेयर जो होता था ना पहले, कि आप यहाँ पे आए बॉम्ब के चले गए, क्योंकि वैसे तो विश्व का ऑर्डर ही बदल गया पूरा. द इंटरनेशनल थिंकिंग हैज चेंज. नाउ दे विल कम विद लाइसेंसेस, दे विल कम विद पैटेंट्स, drain you with your resources, take your data, take a strategic call against you, they will preempt you. हमको कहीं ना कहीं तो ना सोचना पड़ेगा. मैं संपत भाई का बड़ा धन्यवाद करता हूँ. संपत भाई आपने मुझे बुलाया, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया मुझे यहाँ पे. एक बड़ा अच्छा मंदिर है ये विश्वविद्यालय, बहुत ही नामी गिरामी है. इस विश्वविद्यालय से कई अच्छे लोग भी आए हैं. Sir, I mean asking your help every time. Whenever I met you in 2013, 2014, today also I'm asking your help. So one, that problem has to be solved. That bridge वाला problem. वो चाइना में बनाता है, वहाँ नहीं बनाता है. दूसरा एक और मेरे मन में दुविधा है सर. जापान इतना छोटा है, हम इतने बड़े हैं. वो 52,000 पैटर्न फाइल करता है सर. हम 2,000 पैटर्न नहीं फाइल करते. You are sitting in this university. Why can't we research, file patents, create our own knowledge, and then go to the world and say that we will now sell this knowledge to you? परतंत्र की भाषा अगर हम करें तो परतंत्र केवल राजनीतिक नहीं होता. पॉलिटिकल स्लेवरी इज वन पार्ट. इकोनॉमिकल स्लेवरी इज मोर डेंजरस देन अ पॉलिटिकल स्लेवरी. टेक आवर डेटा, दे स्टार्ट सेलिंग अस. साल में सर फोन चेंज नहीं होता था, चलता रहता था. अब 10 महीने फोन नहीं चलता. फोन कितना भी अच्छा रहा, आपका बेटा आके बोलेगा कि अब ये ओल्ड हो गया, आप चेंज करिए. Somebody is trying to make us economical weak every day. क्या हम सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं एक प्रण ले सकते हैं क्या? अगर हम खुद पढ़ाई कर रहे होंगे तो अपने जीवन में एक पैटर्न फाइल करेंगे. अगर हम खुद पढ़ाई नहीं कर रहे, हम बड़े हो गए तो हमारा जो बेटा बेटी जो भी होगा, पोता पोती होगा, उसे उकसाएंगे कि भाई अपने जीवन में एक पैटर्न फाइल कर. वो चाइना की वॉल जैसे बना रहे ना, वैसा पैटर्न की वॉल बनाए, हम रिसर्च की वॉल बनाए, देश को ज्ञान से सींचे. Let us file so many patterns, create our own standard. And why should we follow only pattern? We can create our own standards. इतने standards करें कि अपने ऊपर जो ये slavery, license slavery जो आने वाली है, multinationals का जो कहर आने वाला है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जो तैयार हो रही है, उसको हम रोक सकें. आपकी सब तरह से जैसे आप लोग सब लोग उत्साहित हैं, मैं भी डॉक्टर स्वामी का भाषण सुनने के लिए बड़ा उत्साहित हूँ. There are a lot of things in my mind. I would like to stage to give me a patience hearing. भारत माता की. And very interestingly too, and जो पेटेंट की आपने बात की, who better than Dr. Subramaniam Swamy to be the इस चीज को should aspire कि या तो हम इनोवेशन लेकर आए या फिर हम अपनी तरफ से लोगों को इंस्पायर करें कि वो उस इनोवेशन के मुंह. मिस्टर वीरेंद्र and share. Welcome sir. अच्छे फोन करो. भारत माता की जय. एक बार सभी बोलेंगे, भारत माता की जय. मैं भारत हूं. आधुनिक राष्ट्रवाद की संकल्पना को साकार करने के लिए आज का ये भव्य कार्यक्रम जो SCL फाउंडेशन ने आयोजित किया है, उसका हम सबका जो सपना है वह तभी साकार हो सकता है जब हम सभी यह सोचें कि हम ही भारत हैं. सपना के पीछे अगर कोई विचार आता है तो वह है राष्ट्रवाद. हमारे राष्ट्र का चिंतन है, हमारे राष्ट्र है, हमारे विश्वास है. ये राष्ट्रवाद शब्द का जन्म कब हुआ तो उसके लिए हमें काफी वर्ष पूर्व जाना होगा. लेकिन आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म अगर कहीं से होता है तो वह स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से होता है. मैं नमन करता हूं स्वामी विवेकानंद जी के उस व्यक्तित्व को जिन्होंने भारत को एक पटल पर भारत के ज्ञान का सांस्कृतिक पहचान को, भारत की धार्मिक पहचान को विश्व पटल पर रखा. और आज हमारी जो विशेषताएं हैं वह संपूर्ण विश्व के सामने है. तो उसका आधार किसी ने दिया तो वह स्वामी विवेकानंद जी थे. और उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की सोच के आधार पर हम राष्ट्रवाद की कल्पना कर सकते हैं. माननीय स्वामी जी को मैंने कई बार सुना है और मैं मानता हूं कि इस मंच पर जो लोग आज उपस्थित हैं वह वास्तव में
राष्ट्रवादी हैं, वे वास्तव में भारत हैं, क्योंकि इनके कार्य में, इनकी रचना में, इनके विश्वास में और इनकी सोच में राष्ट्रवाद भरा, इनकी रग रग में राष्ट्रवाद है। स्वामी जी को जिसने भी सुना होगा या जो भी कोई, अभी माननीय विनीत जी बता रहे थे कि गूगल पे कुछ भी सर्च करें तो सब कुछ सामने आ जाता है, तो आप स्वामी जी को सर्च करेंगे तो मैं मानता हूं कि भारत में अगर कोई सबसे बड़ा राष्ट्रवादी है वर्तमान में तो वह स्वामी जी है। आपने देश को उन शक्तियों से रोका है जो शक्तियां इस देश के ऊपर गलत तरीके से राज करना चाहती थी। एकमात्र वही शख्सियत स्वामी जी है जिन्होंने एक विदेशी महिला को देश की प्रधानमंत्री बनने से रोका। आज मैं गौरवान्वित हूं, मुझे एक ऐसी शख्सियत के सामने का मौका मिला। माननीय स्वामी जी, मुझे कई बार दुख भी होता है, मैं जिस राष्ट्र में हूं उस राष्ट्र के कई लोग आज भी इस पुराना हमारा महाग्रंथ विष्णु पुराण, जिसके दूसरे अंश के तीसरे अध्याय के प्रति जिस राष्ट्र के उत्तर के नाम से जाना जाता है और उस राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक भारत एक राष्ट्र है, तो फिर क्यों यह लोग अभी भी, दूसरे श्लोक में भी कहा गया है कि देवता देश होता है, हर देश का अपना एक होता है, जिसे मैं पूछना चाहता हूं कि भारत का लक्ष्य क्या है, भारत वह संदेश क्या है जो इसको, इस लक्ष्य को, इस सपने को साकार कर सकता है। तो आपका कर्म, आपके विचार जब तक नहीं बन सकता। हमारा कैरियर हो, हम राष्ट्रवादियों को जवाब देना होगा, चाहे हमारी जातियां अलग है, हमारे धर्म अलग है, लेकिन सबसे पहले हम राष्ट्रवादी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, सबसे पहले और जन जागरण करेंगे, देश में राष्ट्रवाद का जन जागरण करेंगे, एससीएल फाउंडेशन और संपत जी सारस्वत की तरह जन जागरण का कार्य करेंगे। माननीय स्वामी जी, हम जिस धरा पर आज हैं, यह सूरत पूर्व में सूर्यपुर के नाम से प्रसिद्ध, गोपी ब्राह्मण शहर की रचना की। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह शहर जो इतना समृद्ध था वह धीरे धीरे किस ओर जाएगा और फिर पुनः समृद्धि की ओर जाएगा। 17वीं शताब्दी के मध्य में जब यहां पे एक महान व्यवसायी थे वीर जी वोरा, आप सभी ने नाम सुना होगा। 17वीं शताब्दी के मध्य में वीर जी वोरा अगर पूरे विश्व के सबसे बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, तो आखिर आज क्यों नहीं सूरत में सबसे बड़ा व्यवसायी हो सकता। मैं आप लोगों से आज एक संकल्प लेकर जाना चाहता हूं कि आप सभी संकल्प ले कि आगे आने वाले 25 तक सूरत से एक ऐसा व्यापारी तैयार हो जो इस विश्व का सबसे बड़े व्यापारी बने। दुनिया का 90% डायमंड यहां पे पहुंचा, तो 90% टेक्सटाइल यहां क्यों नहीं बनता। आप सब लोग ये कल्पना करें, 2025 तक इस कल्पना को साकार करें कि 90% टेक्सटाइल भी हमारे यहां से बनेगा। मैं मानता हूं कि अगर ये दोनों कार्य हो गए तो भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप लोग नहीं चाहते कि भारत विश्वगुरु बने? चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? तो आप लोगों को 2025 तक इस कल्पना को भी साकार करना होगा कि दुनिया के 90% टेक्सटाइल के ऊपर आप लोगों का अधिकार हो, सूरत का अधिकार हो, जिस प्रकार से डायमंड पर आपका अधिकार है। 1994 में आपके यहां पे बाढ़ आई, सूरत बहुत विपदाग्रस्त था, लेकिन सूरत की जनता ने जो संकल्प लिया कि हम सूरत को भारत का सबसे स्मार्ट और सबसे सुंदर शहर, सबसे स्वच्छ शहर बना, आपने वह सपना साकार किया। आज भारत सूरत 3 नंबर का सबसे स्वच्छ शहर है और होना चाहिए इस बात पर। लेकिन स्वामी जी, मुझे कई चीजों पर दुख भी होता है। जाता है कि जा रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है स्मार्ट सिटी बनाने की ओर, कल्पना है 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन दुख इसलिए होता है कि किसी दूसरे विदेशी शहर की तर्ज पर हम लोग स्मार्ट सिटी बनाने की कल्पना करते हैं। क्या भारत में ऐसे पुराने नगर नहीं थे जिनके तर्ज पर हम लोग स्मार्ट सिटी बना सकते हैं? आज चारों दिशाओं में देखेंगे शहर मुझे नजर आता है। क्या सूरत स्मार्ट सिटी नहीं है? हमारे यहाँ भी तकसीला थी और भी अन्य कई प्राचीन ऐसे नगर थे जो स्मार्ट सिटी की कल्पना उनसे संजो सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप लोग सरकार में है, सरकार का अभिन्न अंग है, आप लोगों को सरकार के समक्ष ये पहुंचाना चाहिए कि एक राष्ट्रवाद के नाते जब यह सरकार कहती है कि हम राष्ट्रवादियों की सरकार हैं, तो हमें भी यह चाहिए कि हम
हमारी स्मार्ट सिटियों का नाम या हमारी स्मार्ट सिटियां उन्हीं शहरों के नाम पे बनाए जो हमारे प्राचीन शहर थे। हम लोगों ने बहुत पहले हमारे प्राचीन काल से एक नारा दिया हुआ है, वसुदेव कुटुंबकम। इस एक ही कथन में वह सब कुछ समाहित है। मैं मानता हूं अगर वसुदेव कुटुंबकम की भावना से पूरा विश्व काम करे तो इस विश्व के ऊपर जो आपदाएं हैं, चाहे वो सीरिया की हो, आतंकवाद की हो, गरीबी की हो या आर्थिक अन्य कोई आपदाएं हैं, वह दूर हो सकती है अगर एक ही नाम, एक ही यह वाक्य सब राष्ट्र ध्यान रखे तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना। इसमें सभी समस्याओं का इलाज है। और भारत का राष्ट्रवाद है वह इसीलिए आदर्श राष्ट्रवाद है क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। तो आपको अपने राष्ट्रवाद पे गर्व होना चाहिए, आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। और माननीय आप सभी लोगों को गर्व भी होना चाहिए कि हमारा इतिहास समृद्ध था, हमारा गौरवशाली इतिहास था, गौरवशाली होगा, हमारा भविष्य भी होगा, सुदृढ़ होगा। हमारा देश का प्रधान सेवक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना, वह एक भारत श्रेष्ठ जब आप और हम सभी मिलकर एक होंगे, जब आप और हम सभी मिलकर श्रेष्ठ भारत की रचना करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए मैं आपसे एक बार प्रण करना चाहता हूं कि हमारा जो भी कार्य हो, हमारा कैरियर हो, हमारा भविष्य हो, यहाँ एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वह है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। एक ऐसी शख्सियत श्री अय्यर जी हैं जो कि यूएसए से हैं। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, चेयरमैन है और श्री जी के साथ इस बुक लॉन्चिंग में शामिल हो श्री आनंद भाई बख्शी, चेयरमैन श्री कृष्णा ग्रुप। प्लीज अय्यर सर। खास अमेरिका से हमारे बीच अय्यर जी पधारे हैं तो उनके लिए एक बार तालियों से अभिनंदन हो। उन्होंने सी कंपनी नाम की पुस्तक लिखी है जिसको ये लॉन्च करने जा रहे हैं डॉक्टर स्वामी जी के हाथों से। पिटारे में क्या है वो तो खुलने के बाद पता चलेगा, हमें खाली शीर्षक दिया गया है सी कंपनी। तालियों से एक बार बात का सम्मान किया जाए, उत्साहवर्धन किया जाए श्री अय्यर जी का। ये पुस्तक जब मैंने इसका शीर्षक देखा तो मुझे शीर्षक के बाद मैंने अय्यर जी से पूछा कि इसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। वो जानने के बाद मुझे, मैं बताऊंगा नहीं आपको फुल फॉर्म, अय्यर जी बताएंगे, लेकिन मुझे लगा कि कोई ना कोई चिंता तो करता है देश की। देश के प्रति जो चिंता के भाव उन्होंने प्रकट किए वो इस पुस्तक के माध्यम से प्रकट किए जो आपके बीच में अभी लॉन्च हो चुकी है। एक बार आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि ताली बजाकर इनका हार्दिक अभिनंदन करें। श्री अय्यर जी से निवेदन करूंगा 2 मिनट बुक के बारे में ब्रीफली बता दें। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी का उद्बोधन, जिसके लिए यहाँ पर आप अपने पांव जमाए बैठे हैं। हम भी आपकी कमजोरी समझते हैं, इसीलिए उनको सबसे लास्ट में रखा है कि आप रहेंगे, इसलिए हम माफी चाहते हैं पुनः एक बार। श्री अय्यर जी। थैंक यू संपत जी। पूज्य राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी और मंच पर विराजमान सभी महान व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। आखिर ये सी कंपनी क्या है? आप लोग सब तो डी कंपनी जानते हैं, तो बस ये सी आजकल अखबार में बहुत उनका नाम आ रहा है। उनके सुपुत्र का सीबीआई ने जेल में भी डालकर आजकल उनकी क्वेश्चंस पूछ रही है। तो ये एक कंपनी, यानी कि ये जो ऐसा एक बिल्डिंग नहीं है, हेडक्वार्टर्स नहीं है जहां पर लोग बैठकर कुछ करते हैं। ये सी कंपनी इन व्यक्तियों की है जो कि समझो चिदम्बरम साहब के भक्त हैं और उनकी भलाई चाहते हैं। इनको चिदम्बरम साहब ने हर जगह पर विस्तृत कर दिया है। ये तो मैं इस किताब में सिर्फ
सत्ता बाजार में इन्होंने किस तरह का खेल खेला, इसके बारे में मैंने लिखा है। और इसके लिए चिदम्बरम साहब के काफ़ी टीम मेंबर्स एक एक्सचेंज में रखे गए जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप लोग सब जानते हैं, जो भी आप सत्ता बाजार में खेलते हैं तो आप शायद नाम आप जानते हैं, NSE कहते हैं इसको। तो इस NSE को लेकर, इस एक एक्सचेंज को लेकर चिदम्बरम साहब ने 10 साल के पीरियड में, यानी कि 2004 से 2014 तक उन्होंने इतने पैसे बनाए और इसके पूरे विवरण इस किताब में हैं। और ये एक ही नहीं किया इन्होंने ये भी किया कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज हो। जो भी उसके सामने कंपटीशन आया तो उन्होंने अपने अधिकार के बल पर और काफ़ी यानी कि कोर्ट में खींचकर वगैरह वगैरह, आप जो भी सोचे उन्होंने इस तरह के चीज़ किए और बाकी लोगों को सत्ता बाजार में आने को नहीं दिया। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये किताब बाहर आपके लिए अवेलेबल है, 100 रुपये में ये बिक्री है। और बहुत सिर्फ कुछ 70 पेज है, आप बहुत जल्दी और आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं इसकी अनुवाद भी करा रहा हूँ और हिंदी में भी शीघ्र ही आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अय्यर जी कि आप इतने दूर से पधारे इस बात के लिए। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको इंतजार है, और मैं एक बार चाहूँगा कि आप सभी अपनी जगह से खड़े होकर हार्दिक अभिनंदन करें डॉक्टर स्वामी जी का। और मैं निमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर स्वामी जी, ये एक अभूतपूर्व पल है, ये अकल्पनीय पल है जिस पल में हमारा सपना साकार हुआ कि सूरत की पावन धरा पर हम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के श्रीमुख से राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत बड़े उल्लेख जो है इनके माध्यम से हमें सुनने को मिलेंगे। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर स्वामी जी को कि वो पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर स्वामी जी। सारस्वत जी, मंच में उपस्थित जाने माने प्रसिद्ध व्यक्तिगण और इस सूरत नगर के आदरणीय नागरिकों, पहले मैं मेरे मित्र श्री अय्यर से का थोड़ा परिचय कराना चाहता हूँ। वो मूलतः कैलिफोर्निया में रहते हैं। वो सॉफ्टवेयर में वो जो वहाँ सिलिकॉन वैली कहते हैं, वहाँ 32 पेटेंट लिया है और धनी हो गए हैं और अब त्यागी बनने के लिए और में बढ़ रहे हैं। उन्होंने अब देश की सेवा में एक वेबसाइट चलाई है bgurus.com, जिसमें जब भी कुछ छपता है तो घबराहट बहुत होती है कांग्रेस में और अन्य लोगों ने जिन्होंने चोरी की है। तो ऐसे व्यक्ति आज हमारे भारत के लिए परिश्रम कर रहा है, इसके लिए मैं उनका अभूतपूर्व स्वागत करने चाहता हूं और धन्यवाद कहने चाहता हूं कि आपने समय निकाला। मैं तो जब मैं भारत कहता हूं तो 4 आयाम में मैं देखता हूं भारत को। एक प्राचीन काल का, एक काल जब हमारे देश पर आक्रमण हुई, और तीसरा है कि हमारे आज़ादी के बाद या स्वतंत्र पाने के बाद जो नेहरू का जो प्रभाव है, जो अभी धीरे धीरे का ख़त्म हो रही है परंतु पूरे ख़त्म नहीं हुई है, वो जो 40-50 साल और 70 साल के बाद जब आज एक नवीनतम रूप में पूर्ण बहुमत के साथ जो सरकार बनी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो चौथा भाग में मैं देखता हूँ। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में
और जब तक विदेशी आक्रमण पूर्ण रूप से हमारे देश में हावी नहीं हुआ, तब तक हम दुनिया के सबसे समृद्धशाली देश माने जाते थे। हमारी जो जीडीपी थी, जिसकी अनुमान लगाई गई है, वो दुनिया के 50% की थी और 37% चाइना की थी, और बाकी जो यूरोप, बाकी जगहों की जो है वो जो शेष थी। अब ये कहानी जो उस समय की जब सुनते हैं तो मुझे भी आश्चर्य होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैं प्राध्यापक बहुत सालों के लिए था, तो हार्वर्ड के बगल में एक शहर है या उपशहर शहर है, उस उपनगर का नाम है बेलमोंट, और वहाँ एक बहुत बड़ी सरोवर है, और उस सरोवर में म्यूनसिपैलिटी ने एक सड़क बनाई है, तो हम जो लोग यानी तैर के लिए या वॉक के लिए इच्छुक थे, वो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए मैंने जब उसकी परिसर पर पैदल गया तो एक साइन बोर्ड देखा, उसमें लिखा था अंग्रेजी में, हियर स्टूड ट्यूडर आइस कंपनी which used to export ice to India 1636, यानी कितने साल, लगभग 400 साल से 20 साल कम। और उसमें ये लिखा है कि यहाँ पहले एक फैक्ट्री थी, जिस फैक्ट्री से बर्फ बनाकर इंडिया को निर्यात करते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा हो गया। तो मैंने गूगल में जाकर ट्यूडर आइस कंपनी मैंने टाइप किया, और निकला क्या कि कांचीपुरम में मैसेच्यूसेट्स से प्रदेश से अमेरिका के लोग जहाज लेकर जाते थे कांचीपुरम, जो तमिलनाडु के चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में है। वहाँ एक बड़ा बंदरगांव था, चोला राज के बंदरगांव। वहाँ ये जाते थे जहाज से और खरीदते थे कपड़ा, जो मसाला, कई चीज़ों जो उनको अपने देश में नहीं मिलती थी, वो खरीद कर फिर वापस आते थे। एक दिन वहाँ का राजा, उन्होंने सबको बुलाया और उनसे पूछा कि आप सुखी हैं, यानी सारा व्यवस्था अच्छा है क्या? तो उस समय उन लोगों ने कहा कि सब तो बहुत बढ़िया है, यहाँ बहुत स्वागत भी होती है, आपके जो व्यापारी लोग हैं वो बड़े ईमानदार हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि हमारे एक काल में व्यापारी भी बहुत ईमानदार थे, आज भी अधिकांश हैं, परंतु बड़े बड़े मछली भी हैं जो काफ़ी हमारे घोटाला में शामिल हैं। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि बड़ी ईमानदारी से वो सब ज़्यादा चार्ज नहीं करते, हम सब लोग खरीद के ले जाते हैं, परंतु हमारे एक कंप्लेंट है, वो है कि हम खाली जहाज लाते हैं और उसको भर के फिर वापस जाते हैं। आपको भी कभी हमसे कुछ खरीदना चाहिए। तो फिर राजा ने कहा कि हिंदुस्तान में तो सारी चीज़ें उत्पादन होते हैं, तो मैं आपसे क्या खरीद सकता हूँ। तो उन्होंने फिर जब आग्रह किया तो उन्होंने कहा, देखो मैंने सुना कि आपके देश में आसमान से यानी आकाश से बर्फ़ गिरता है और वो बर्फ़ जम जाता है ज़मीन में। मैंने बर्फ़ कभी देखा नहीं। हाँ, हिमालय में है, परंतु उसके लिए दूर जाना होता है मुझे। तो यदि आप बर्फ़ लाएंगे आपके देश से, मैं उसको खरीदूंगा, क्योंकि और सब चीज़ तो हमारे देश में है। तो जहाँ वो जो सरोवर है, वो शीतकाल में जो ठंडी मौसम आती है, वो सारा फ्रीज हो जाती है। तो ये व्यापारी लोगों ने क्या किया कि जब वो फ्रीज हो जाती है, फिर उसको काटते हैं, पर उस सरोवर में जो पानी यानी जब फ्रीज हुआ है, उसको काट के सॉडस्ट डाल के उसको
हिंदुस्तान माने लगभग 25,000 किलोमीटर दूर के बराबर। वो केप ऑफ यानी उस समय सुएज कैनाल नहीं थी, तो साउथ अफ्रीका से होकर आते थे और हमारे देश में बर्फ़ बेचते थे। तो अमेरिका का पहले एक्सपोर्ट था बर्फ़। ये हाल थी कि हम लोगों को कुछ अमेरिका से खरीदने के लिए कुछ दिमाग में आया ही नहीं, सिर्फ बर्फ़ पर आए थे। वहाँ उस समय की जो परिस्थिति थी, भारत को आने के लिए सारे लोग तड़पते थे खरीदने के लिए, और ये लगभग 1100 AD तक, माने लगभग 900 साल पहले यह ऐसी परिस्थिति थी। फिर आए बाहर से आक्रमण करने के लोग। हमारे देश में सिर्फ आर्थिक समृद्धि नहीं थी, हमारे देश में विज्ञान, गणित, सारी चीज़ें प्राप्त होती थी। मैंने अभी एक बहुत पुराना ग्रंथ देखा जिसका नाम है विमान शास्त्र। विमान माने हवाई जहाज, बहुत पुराना है, और उसमें सारी हवाई जहाज की जो आज हम जानते हैं उसका पूरा विवरण है। तो मैंने कहा कि ये पता करता हूँ कि उन दिनों में तो पेट्रोल किसी के पास जानकारी नहीं थी, क्या हमारे पास पेट्रोल की जानकारी थी, तो कौन सी फ्यूल में, कौन सी तेल में ये हवाई जहाज उड़ते थे शास्त्र के अनुसार। तो मैंने जब पढ़ा उसमें से लिखा था मरकरी था, जो हवाई जहाज में पेट्रोल की जगह में डालते थे वो, तो उसको मदद की और चौहान ने उसको माफ भी करने के बाद दूसरा बार आए तो उसको दंड यानी तो फांसी देना चाहिए था, परंतु उन्होंने 2 बार 3 बार उसको माफ किया, और हर बार जयचंद सिखाया कि यदि आप 3 बजे सुबह आक्रमण करोगे तो फिर आप जीत सकते हो। वो बदला लेने चाहते थे पृथ्वीराज चौहान से। तो 3 बजे रात को आक्रमण करने का अर्थ क्या है? क्योंकि हमारी जो परंपरा, युद्ध करने के पहले हमारे साथ जवान थे वो 3 बजे उठकर शौच करके, स्नान करके, पूजा करके, जिसने उसको मदद किया। तो हमारे देश में थोड़ी सोचने की बात है कि कोई ऐसी जो विद्वान होता है तो किसका भला होगा वो सोचना, उसमें आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा गोडसे जैसा बुद्धू मैंने जीवन में देखा, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं। क्यों? क्योंकि गोडसे ने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू विरोधी है, इसीलिए को मैंने उसको मारा, ये उन्होंने कोर्ट में कहा। परंतु मारने के बाद किसका फायदा हुआ? जो सबसे ज्यादा एंटी ने फिर अपने को बादशाह डिक्लेयर किया दिल्ली, और फिर जो आक्रमण आते रहे कि इस्लाम यानी पहले भी आया था बट छोटे मोटे होकर पिट कर गए थे। तो 1200 से यहाँ राज करने लगे लगभग 1857 से तक। तो इस काल में, इतनी लंबी काल में यहाँ इस्लाम थी, और वो बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, ये सारे लोगों ने दमन और यातनाएं, नरसंहार ये करते रहे। बट आप ये देखिए कि ईरान में भी गए थे, जब वहाँ पारसी जो ज़ोरास्ट्रियन कहते हैं आपके देश में, आपके प्रदेश में आपने उनको शरण दिया था, और मेरी पत्नी भी पारसी है, तो मैं गुजरात का जमाई हूँ, यानी दामाद हूँ। उनकी जो इतनी एक बड़ी साम्राज्य थी पर्शिया में, जिसका नया नाम है ईरान, वहाँ इस्लाम ने कब्जा की थी उस देश की, और इस्लाम ने कब्जा करने के बाद सारी मार काट, नरसंहार सब करके 15 साल के अंदर ईरान को उन्होंने 100% इस्लाम बना दी, और आज ईरान तो 100% इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहते हैं।
बगल में मेसोपोटामिया, अरेबिया, मेसोपोटामिया, बेबीलोन जो आज मिलकर उसको इराक कहते हैं, उस देश को भी, उन दोनों देश को भी कब्जा करके 17 साल में 100% मुसलमान बना दी। इजिप्ट को 21 साल में कब्जा करने के बाद 100% मुसलमान बना दी। और क्रिश्चियंस ने यूरोप को 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दी। पर हमारे देश में लगभग 100 साल मुसलमान की राज और 200 साल यानी 150 साल अंग्रेज़ों की राज में वो क्रिश्चियंस थे। फिर भी आज हम 80% हिंदू हैं। इसके पीछे क्या है, थोड़ा जरा आप सोचें। इसके पीछे है कि हमारे राजा लड़ते रहे। कोई शिवाजी जीते, राणा प्रताप हारे, पर आखिर में जीते, और फिर विजयनगरम एम्पायर यानी साम्राज्य जो 300 साल चली, दक्षिण से बंगाल के बॉर्डर तक, यानी कर्नाटक से शुरू हुई, केरल गई, तमिलनाडु गए, तमिलनाडु से फिर आंध्रा, आंध्रा से बंगाल, उड़ीसा होकर बंगाल बॉर्डर तक पहुंच गए थे। 300 साल थे। और इस 300 साल की साम्राज्य की एक भी लाइन की जिक्र आज के इतिहास की पुस्तक में नहीं है। कहीं 1-2 पुस्तकों में होगा कि दक्षिण में ऐसा कोई साम्राज्य थी, हिंदू साम्राज्य, जिसका नाम था विजयनगरम एम्पायर, परंतु कोई विवरण नहीं है, किसी को पता भी नहीं है। किसी से पूछोगे विद्यार्थियों से तो विजयनगरम के बारे में पता ही नहीं है। अब 300 साल, अकबर से औरंगजेब का जो काल है वो कितना है, 150 साल। उसके लिए तो एक एक अध्याय है। बाबर के लिए एक है, हुमायूं के लिए एक है, अकबर के लिए एक चैप्टर है, जहांगीर के लिए, शाहजहां के लिए, औरंगजेब के लिए, और ये सब आपको रटाते हैं। और लेकिन हमारे देश में इतनी बड़ी संघर्ष जो दुनिया में किसी ने नहीं कर पाए। हमने इस्लाम की जो बढ़ती हुई गति थी उसको रोककर, उसमें कितने लोग विजयनगरम के बाद आसाम में अहोम डायनेस्टी जो थाईलैंड से आए, हमारे देश में बसे, हिंदू धर्म स्वीकार किया और अहोम डायनेस्टी बनाई। और इसी प्रकार से पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, उनके पिताजी के त्याग, गुरु तेग बहादुर। इस प्रकार से एक भी जगह नहीं थी जहां हम लड़ते नहीं रहे। अंग्रेज भी आए तो लड़े, रानी झांसी का तो कथा आप जानते हो। परंतु इसी प्रकार से कर्नाटक में रानी चन्नम्मा, तमिलनाडु में कट्टबोम्मन, हमारी इतिहास में 800 साल के लिए लड़ते रहे। और इसके बाद हम आज़ाद हुए, और आज़ाद होने के बाद हमको एक पुनरुत्थान करनी चाहिए। तो उसमें तीसरी जो भाग आती है, हमारे इस इतनी समृद्धशाली दुनिया के सबसे विकसित देश धीरे धीरे घटते सबसे गरीब देश बन गई 1947 में। उस समय जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सारी बातें आ गई, और जवाहरलाल नेहरू कभी किसी की बात सुनते नहीं थे। उन्होंने कहा कि रूस की इकोनॉमिक मॉडल लाएंगे और हमारे देश में थोपेंगे। जो रूस में नहीं हो सका, कर सके, वो सोचते थे हिंदुस्तान में हो सकता। पर जवाहरलाल नेहरू कभी किसी की बात नहीं सुनते थे। कश्मीर को लेकर चले गए, जैसे अभी जिक्र हुआ यूनाइटेड नेशंस में, किसी को पूछा नहीं। किसी एक ही व्यक्ति के बात थोड़ा कुछ सुनते थे, उनका नाम था एडविन माउंटबेटन, बट और किसी की बात नहीं सुनते थे। तो उन्होंने इसको थोपा, ये सोवियत मॉडल। ये सोवियत मॉडल हमारे लिए अनुकूल इसीलिए नहीं था कि सोवियत मॉडल की जो हार थी, सिद्धांत थी, वो ये थी कि कृषि से साधन को चूस औद्योगिकरण में लगानी है। अब लेनिन थी, सोवियत यूनियन आने के पहले उन्होंने कृषि में असंभव, लेकिन देश में 1857 के बाद अंग्रेजों ने ऐसी ढांचा बिठाई कि हमारी किसान टूट जाए और वो कभी विद्रोह नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि रानी झांसी अपने लड़कों को दिया भर्ती, रानी झांसी की और अन्य लोगों की सेना में, और आगे
ऐसा ना करें, इसीलिए अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद उन्होंने जमींदारी सिस्टम लाई, जमींदार बनाई, उनको अधिकार भी दे दी कि हमारे प्रशासन चलाने के लिए इतनी पैसा आपको देना होगा, लेकिन जितना आप वसूल चाहते हो आप वसूल कर सकते हो। इस प्रकार से सिस्टम बनाकर हमारी सारी कृषि की कमर तोड़ दी थी। तो 1947 में हमें कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। 10% के लिए हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सारी एक पैकेज बनाकर देंगे, जिस कारण से वो उत्पादन को बढ़ा सके, जिसको बाद में सब लोग ये ग्रीन रेवोल्यूशन है। वास्तव में हम ध्यान देंगे कृषि पर, तो कृषि ही हमारी सारी कमाई जो कमाई है एक्सपोर्ट से या हमारे देश की जो राष्ट्रीय उत्पादन से, वो व्यवस्था कर सकती है। हमारे आज भी हमारे देश की जो अनाज है वो सबसे सस्ता है दुनिया में। जो सबसे श्रेष्ठ चावल है बासमती, उसका दाम आप किसी दूसरे देश की तुलना में देख लीजिए। जापान चावल पैदा करती है और जितनी उसकी जो दाम है इंटरनेशनल प्राइस, वो 6 गुना ज़्यादा है हिंदुस्तान से, और साउथ अफ्रीका भी 6 गुना ज़्यादा है। हम निर्यात कर सकते हैं, मतलब हमारे किसान को तो पता ही नहीं है कि क्या निर्यात करना है। बहुत आसान है आजकल, उनको इंटरनेट सिखा दोगे तो वो कर सकते हैं। और थोड़े वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाएं। आपको यहाँ एयर फ्लाइट लाने के लिए इतनी बड़ी नगर के लिए इतना बड़ा, आखिर में एयर सर्विस शुरू हो गई, एक ही फ्लाइट है ना, और उन्होंने जहाँ, तो इसके लिए तो इसको तो बड़े शहर मान करके डेवलप होनी चाहिए। लेकिन किसान के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में छोटा एयरपोर्ट होनी चाहिए, जिससे वो अपने उत्पादन को बंदरगाह तक पहुंचा सकें, बम्बई तक। इस प्रकार से हम कृषि के लिए वास्तव में व्यवस्था करेंगे तो हमारे देश में बड़ी संख्या में उत्पादन बढ़ सकती है, जिसको हम निर्यात कर सकते हैं, दुनिया में बेच सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ता है। और हमारे देश में तो 12 महीने आप कृषि कर सकते हैं। अमेरिका में वहाँ कृषि नहीं, तो हमारे देश में नहीं कर सकते हैं। माने 3 फसल बो सकते हैं एक साल में, लेकिन आज सिर्फ 25% ज़मीन पर हम एक से ज़्यादा फसल बो रहे हैं, और बाकी 75% बिल्कुल एक ही बारिश जब आती है तब फसल आती है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इस प्रकार से अनेक चीज़ों में गाय की दूध आज दुनिया में मानते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो ब्रीड है, जिसको बॉस इंडिकस कहते हैं, यानी गाय अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन जिसको हम पूजनीय मानते हैं, जिसकी हत्या पर हम रोक लगाने में लड़ रहे हैं, का नाम है बॉस इंडिकस। और पता नहीं क्यों अमेरिका में उसको ब्राह्मण गाय कहते हैं, पता नहीं क्यों ब्राह्मण नाम दे दिया। ब्राह्मण तो कुछ देते नहीं है, लेते हैं, नहीं होते। इस बॉस इंडिकस गाय हैं और इतनी दवाई की देखेंगे तो उसको बॉस टॉरस कहते हैं। और अलग से एक कार्टन होती है, उसमें लिखा A2 मिल्क। और अमेरिका पहचानने के बाद तो हम धीरे धीरे पहचानने लग गए हैं, थोड़ी बात आने लग गई है। मजाक करते थे योगा के बारे, जब वहाँ अमेरिका में हॉलीवुड एक्ट्रेस योगा है, तो आज संस्कृत के लिए भी आज बोलने वाले जो हीन भावना जो अंग्रेजों ने भरा है, इस कारण से हम जानते नहीं करके उसको पालन पोषण करके वो गाय एक साल में 11,000 लीटर देती है। तो हमारे देश में देखिए 15 करोड़ गाय 11,000 लीटर देने लगेंगे, तो आपको एयर फ्लाइट की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली से सूरत दूध में तैर के आ सकते हैं। इतनी दूध हमारे देश में पैदा हो सकती है। तो ये हिंदुस्तान को देखेंगे तो सब चीज़ क्षमता की है, और क्षमता के कारण क्षमता का उपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग, उसका कुछ उपयोग ही नहीं हो रहा है। पोटेंशियल बहुत है। हमारे देश की पॉपुलेशन आज
हमारे देश में इसको सबसे यानी कम उम्र की, औसत में सबसे कम उम्र की पॉपुलेशन मानते हैं। औसत में हमारी इंडियन पॉपुलेशन का जो उम्र है वो है 26 साल। औसत में जो चाइना है उसकी पॉपुलेशन की उम्र 35 साल है और औसत में अमेरिका के 37 साल है। यूरोप का 45 है, 45। लगभग उनकी पॉपुलेशन बुढ़ा हो गई है क्योंकि उन्होंने इतनी फैमिली प्लानिंग की कि वहाँ पॉपुलेशन बढ़ना बहुत कम हो गया है। हमारे देश में आज 70% 35 साल से कम है और ये एक बहुत बड़ी पूंजी है। इसको हम परिवर्तित करके हमारे देश में नवीन इनोवेशन जिसको कहते हैं, नवीन टेक्नोलॉजी लाकर हमारे देश में हमारी शोध करके, अनुसंधान करके हम पैदा करेंगे तो हमारे देश में बदल आ सकती है। अभी हमारे तमिल भाई सब लड़ रहे हैं कर्नाटक से कि कावेरी में पानी हमारी ज़्यादा हिस्सा दो, ऐसा दो। मुझे पूछा कि आप हमारे साथ हो या कर्नाटक के साथ हो। मैंने कहा पहले सवाल मुझे बताओ, आपको कावेरी पानी चाहिए या पानी चाहिए? पानी का मैं व्यवस्था कर सकता हूँ बट कावेरी पानी मैं नहीं कर सकता। ये जो बिना अकल जो सारे भावुक होकर वहाँ आंदोलन शुरू हो जाती है कि इस पर ही हम लड़ने और फिर एक दुश्मनी पैदा होती है दो प्रांतों में जो हमारे एक देश के हैं। तो आज मैं ये कहता हूँ कि तमिलनाडु को पानी चाहिए तो वही करना चाहिए जो इजराइल कर रही है जहाँ एक भी नदी नहीं है, या सऊदी अरेबिया कर रही है जो ये नदी नहीं है, फिर भी 24 घंटे में उनके नल में पानी आती है। खेत के लिए जितना पानी चाहिए मिलती है। दुबई में चले जाइए, वो रेगिस्तान थी, अब वो सारा हरियाली दिखती है। वो क्या करते हैं कि समुंदर से वो नमक हटा करके पानी पैदा करते हैं पीने के लिए और खेती के लिए। हमारे देश में तो इतनी बड़ी तट है तो सारे हिंदुस्तान को हम पानी दे सकते हैं। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में मैंने देखा ये हो रहा है। आपके जामनगर में वो रिलायंस का एक पॉलिएस्टर यानी एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री को जामनगर की म्यूनसिपैलिटी का हम पानी नहीं दे सकते, हमारे पास पानी ही नहीं है। तो उन्होंने फिर ये डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर यानी नमक हटा करके पानी पैदा करने की टेक्नोलॉजी लगाई और इतनी पानी पैदा की कि वो आज वो जामनगर की म्यूनसिपैलिटी को पानी बेच रहे हैं। तो ये हमारे देश में गुजरात में देखा और तमिलनाडु में भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है कलपाकम, उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास पानी नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, आपके जो कर्मचारी हैं आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जो पानी चाहिए। तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर के जो कैंपस में उन्होंने ये तट के किनारे एक डिसैलिनेशन प्लांट लगाई और पानी पैदा कर लिया अपने कर्मचारियों के लिए, अपने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के लिए। हमारे देश में ये सारी झगड़ाएँ जो है अनावश्यक हैं और इसके पीछे और भी कारण होते हैं। जैसे तमिलनाडु में क्योंकि जब भी पानी की कमी हो जाती है तो ये जो टैंकर वाले हैं वो सब आ जाते हैं और यदि पानी खूब मिलेगी तो टैंकर वाले की बिजनेस खत्म हो जाएगी और इसीलिए वो टैंकर वाले जो होते हैं वो राजनीतिज्ञों को पैसा देते हैं और लफंगे लोगों को यानी आंदोलन करने के लिए पैसा देते हैं और ऐसा हंगामा पैदा करते हैं और वो कहते हैं वो बड़ा महंगा पड़ेगा। बिल्कुल गलत बात है। मैं किसी को चैलेंज करता हूँ। मैंने तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर को कहा कि मुझे दे दो प्रोजेक्ट और मैं सेंटर से पैसा लाऊंगा और इसको 4 महीने में लगा दूंगा और आपको पानी की दिक्कत ही नहीं होगी। आज तक उसने मेरी बात नहीं मानी। उसको पता है कि उसकी क्या असर होगा। उसके बाद लोग उसको कहेंगे तुम धोखेबाज हो, स्वामी ने सही कहा। तो ये सिद्ध मैं कर सकता हूँ, ये पोटेंशियल है। दूसरा है बिजली के लिए। हमारे देश में दुनिया की 60% थोरियम है। अब आजकल तो यूरेनियम का उपयोग होता है रिएक्टर्स में, बट यूरेनियम जो है वो 2050 में ख़त्म हो जाएगा। तो अमेरिका चुपचाप अब शुरू कर दी है थोरियम का
रिसर्च, उसको रिएक्टर में कैसा यूज़ करना। होमी भाभा ने इस रिसर्च को शुरू की थी, लेकिन जब इंडिया और अमेरिका की जो संधि हुई थी न्यूक्लियर रिएक्टर पर, उस पर जब मनमोहन सिंह ने उसकी रिसर्च को रोक दी। अब 60% दुनिया की थोरियम आपको मिल रही है और इसकी चोरी हो रही है आजकल। आपने कभी कभी अखबार में देखा कि रेग को स्मगल करने के इसमें कई लोग पकड़े गए तमिलनाडु में। मुझे बड़ा आश्चर्य होगा कि रेग को कौन, यानी सैंड को कौन एक्सपोर्ट करेगा। परंतु जब मैंने पता किया, उस सैंड जो है केरल का और तमिलनाडु का तट के किनारे, वो उसमें मोनाजाइट है जो थोरियम है, और इसीलिए उसको चोरी करके अमेरिका बेच रहे थे और अमेरिका उसके भंडार बना रही थी थोरियम के लिए। हमारे देश में थोरियम का रिसर्च पूरा कर दे तो इतनी बिजली पैदा होगी कि सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं और बगल के देशों को भी दे सकते हैं, और हमारे देश में मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, इतनी हम व्यवस्था कर सकते हैं। ये जैसे कतार में आपको गैस चाहिए तो मुफ्त में देते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी गैस है, तो उसको वेस्ट में जाने की जगह वो मुफ्त में दे देते हैं। सब घर में कुकिंग गैस आपको फ्री मिलती है कतार में। तो ऐसे हमारे देश में इतनी हमारे देश की जो क्षमता है, इसीलिए तो उस समय हम दुनिया में चमक रहे थे। हमारे ऋषि मुनियों ने रास्ता बनाई और बताया, ज्ञान दिया। हमारे मेडिसिन में भी सुश्रुता ने प्लास्टिक सर्जरी तक, उसने सर्जरी की बात छोड़िए, प्लास्टिक सर्जरी भी उसने करके दिखाया। तो इतनी आधुनिकता होने के बाद हमारे देश दब गई। तो आज जब मैं भारत को कहता हूँ, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि हम पिटे, हम कभी नहीं पिटे। हमने तो लड़ते लड़ते फिर आखिर में उनको पीट दिया है। फिर उसके बाद दूसरे लोग आए, अंग्रेज़ों ने, उन्होंने एक ही खराबी की, उन्होंने हमारी दिमाग को ख़राब कर दिया, पुस्तकों को बदल दी और झूठे झूठे इतिहास बनाने लगी। वो कहने लगे कि हम तो एक देश भी नहीं है, पहले हम सारे द्रविड़ थे, फिर आर्यन लोग आए थे खैबर पास से, और फिर उन्होंने द्राविड़ को पीट पीट कर दक्षिण में कर दिया, और वहाँ एक आंदोलन भी शुरू कर दिया, द्राविड़ कड़गम, जो जिसका आजकल नेता करुणानिधि है। और वो फिर उस प्रोपेगेंडा को बढ़ाए। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम द्राविड़स्तानी हैं, और रावण हमारा भगवान है, राम हमारा भगवान नहीं है। और रावण ये राम तो उत्तर भारत का है और रावण जो है वो हमारा श्रीलंका का है। इस प्रकार की प्रोपेगेंडा की, परंतु वो भी सही नहीं है, क्योंकि रावण तो पैदा हुआ था दिल्ली के पास, एक गांव है नोएडा में, बिसरक गांव, वहाँ पैदा हुआ। फिर वो गया मानसरोवर, वहाँ तपस की और भोलानाथ ने उनको वर दिया। उस वर को लेकर वो जाकर श्रीलंका में उनके रिश्तेदार कुबेर ने बहुत सजाया हुआ था, उसको समृद्धशाली कर दिया था, तो उसकी कब्जा की बनकर। तो रावण लीला मनाते थे करुणानिधि। जब ये इतिहास मैंने उसको समझाया, उसके बाद उसने रोक दिया है। अब वो रावण लीला नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से झूठे झूठे इतिहास दिमाग में, हम कभी एक देश नहीं थे, अंग्रेज़ों ने हमें एक देश बनाए, इस प्रकार से चीज़ें की है। तो आज हम ये सोचें कि दोबारा हम उस पुनरुत्थान करके वो जो था उस भारत को दोबारा निर्माण कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। हमारी चीज़ में कोई साधन की कोई कमी नहीं है, जब भी निकालना है। मैं तो कहता हूँ कि ये झूठा है कि जब भी मैं कुछ बात कहता हूँ कहते हैं कहाँ से साधन आएगी। मैंने कहा कि ये सारा इनकम टैक्स सबको तंग करती है, इसको अबॉलिश करो। और मुझे पूछा कहाँ से आती है, और उसके जगह में ज़्यादा टैक्स लगा दी। पेट्रोल का दाम 35 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतनी टैक्स लगी कि 70 रुपये में बिक रहा है। तो हमारे देश को मुक्ति देना चाहिए, हमारी पब्लिक को अपने पाँव पर खड़े होने के लिए देना चाहिए। एक पागल को लेकर उन्होंने रिजर्व बैंक बनाया, उसका नाम था रघुराम राजन। वो उसको आखिर में हमने निकाल दिया था। उसने कहा कि नहीं, मुद्रास्फीति माने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके मैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊंगा, और उन्होंने ब्याज को बढ़ाया
और बढ़ाते बढ़ाते ये सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज सब चौपट होकर बंद हो गए और बेरोजगारी हमारे देश में इतनी बढ़ गई है और इतनी हाई हो गई हमारी इंटरेस्ट रेट, 12% से कम नहीं 18% तक इंटरेस्ट रेट चल रही थी कर्जा लेने के लिए। उसमें क्या हुआ कि अमेरिका में आपको बैंक से कर्जा लोगे तो 2% इंटरेस्ट है। तो कई लोगों ने, और मुझे लगता है ये रघुराम राजन की साजिश होगी, जैसे इसने सोना में अभी किया था चिदम्बरम से मिल करके, वो उसने साजिश की थी कि अमेरिका में लोग बैंक से कर्जा लेकर हमारे देश में आकर यहाँ 12% में देते थे और जो उसमें मुनाफा, कोई काम करे बिना मुनाफा कमा रहे थे। तो हमारे देश में आज हमें एक तो फिक्स डिपॉजिट में ब्याज जरूर बढ़ाना चाहिए, उसको 9% करनी चाहिए, और कर्जा में जो हम चार्ज करते हैं उसको कम करके 9% से ज़्यादा नहीं, दोनों को 9% में रखोगे तो लोग बचत करेंगे और उनको उत्साह है। और इनकम टैक्स को अबॉलिश करोगे तो लोग वो जाकर उसको खर्च नहीं करने वाले हैं, वो तो फिर बैंक में डालेंगे, उससे हमें पूंजी मिलेगी, उससे ग्रोथ आएगा। और वैसे भी 2G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन होती है, उसमें हमें तो जितना मिलती है एक साल में उतना इनकम टैक्स से मिलती है। और कोयले के थोड़े अगले साल हम कोयले के भी जो आवंटन है उसको हम नीलाम करेंगे, उसमें तो हमें इनकम टैक्स से 4 गुना ज़्यादा मिलेगी। और यदि हम विदेश में जो जमा है बैंकों में उसको हम ला सकते हैं, ये बात आ सकते हैं। UN का एक प्रस्ताव है जिसको हम उपयोग करेंगे तो आसानी से आ सकती है। हो सकता है हमारे भी लोग, कई लोगों का बैंक अकाउंट खुल जाएगी तो उस डर के मारे सब विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता कारण क्या है, परंतु बहुत आसान रास्ता है। मैंने प्रधानमंत्री को भी कहा, उन्होंने कहा लिख कर मुझे दीजिए, मैंने लिख कर भी दिया है, परंतु फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जाती है, फिर कूड़ा की टोकरी में चले जाती है। तो मैं आज कहता हूँ कि इसमें हमारी देश में तरीका होती है, लोगों को प्रोत्साहित करनी चाहिए हमें, क्योंकि इतनी नौजवान हमारे युवा युवती है हमारे देश में। यूनिवर्सिटीज खोलनी चाहिए इतनी, और उनको पूरा पैसा देना चाहिए शोध में। इस प्रकार से आधुनिकता लाने से हमारे देश में हम दोबारा वही हो जाएंगे जो पहले भारत थे, वो हमें करनी चाहिए। इसके लिए कई चीज़ें और भी करनी है हमें। हमारे देश की जो अस्मिता को बेहतर है, क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में बोले जो 1000 साल से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 2000 चीन हमें उसको हिंदू को आज भी उनकी ऑफिशियल पब्लिकेशन में वो इंडिया नहीं कहते, वो भारत नहीं कहते, वो हमें हिंदू माने हिंदू, गो माने राष्ट्र, तो हमें हिंदू राष्ट्र कहते हैं। तो मैं कम्युनिस्टों को कहता हूँ, उनको आप इतराज़ नहीं करते हो, हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो क्यों दूसरे गुस्सा हो जाते हो। ये कम्युनिस्टों की ये डबल विचार हो है ना, वो यही है। तो हिंदू का नाम वो शुरू से था, लोग कहते हैं कि एक पुराण में है, मैं अभी भी खोज कर रहा हूँ कि हिंदू एक संधि है, शब्द संधि है, हिमालय का ही और हिंदू सागर का हिंदू, ये दोनों जोड़कर हिंदू ये था कि जो बीच में है हिंदू सागर से हिमालय तक वो है हिंदू। तो वो हम आज मैं उसको अस्मिता मानता हूँ कि ये मैं पहले से ही हूँ, मैं कहीं यूरोप से नहीं आया हूँ, कोई अफ्रीका से नहीं आया हूँ, मैं और कहीं से नहीं आया हूँ। और ये बात सही भी है वैज्ञानिक तरीके से देखोगे, DNA टेस्ट करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हम सब एक हैं, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट एक हैं, उत्तर भारत दक्षिण भारत एक हैं, गुजराती और आसामी इसकी जो DNA वो एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ये तो छपा हुआ है साइंटिफिक जर्नल्स में, पर फिर भी हमारे लोग बोलते रहते हैं। कोई कहते हैं कि नहीं दक्षिण के लोग काला हैं, वो तो धूप के कारण है, वो तो पिगमेंटेशन है, वो तो DNA हो ही नहीं सकता। और DNA का टेस्ट किसी का भी कर दीजिए, तब से कोई लाया है, नहीं तो वहाँ कैसे पहुँच गया है। और हमारे रामायण में, वाल्मीकि में, रामायण में पढ़ोगे तो दिखाई पड़ता है कि वानर सेना उठा के लाए और उन्होंने तट से ला करके रखा समुद्र में, और वो तैरने लग गई
और इसीलिए हनुमान ने राम की नाम लिखना पड़ा ताकि वो बस जाए ठीक से। आज भी जब आप जाओगे रामेश्वरम और राम सेतु पे जाओगे तो वो जो कई पत्थर ऐसे अलग हो जाते हैं, उसको देखो तो तैरते आते हैं। तो ये भी एक सिद्ध होता है बात कि हमारी रामचंद्र जी ऐतिहासिक हैं, इसीलिए हम रामायण को इतिहास कहते हैं, महाभारत को इतिहास कहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इतिहास है वो पढ़ाने की आवश्यकता है। और तभी हमारी एक मीटिंग में कहा था कि एक जगह खड़े हो जाएं और एक शेर आ जाएं तो संख्या तो बकरी के पास है, परंतु भागेगा बकरी एक शेर को देखकर, ये इसको कहते हैं मंशा। या यानी सर्कस में एक पिंजरे के अंदर 5 सिंह होंगे, सैनिक कह के हार गए। मोरारजी देसाई में दामों को इतना कम किया फिर भी जनता पार्टी हार गई। तो कई भावनाओं की चीज़ें हैं। आज हमारे देश में राष्ट्रवाद बढ़ रही है और वो हिंदुत्व के नाम पर जानी जा रही है। लोग जाति से ऊपर उठकर अब वोट देने लग गए हैं, जो पहले नहीं होता था। पहले तो माइनॉरिटीज़ को, अल्पमत को इकट्ठा कर लेते थे कांग्रेस और हिंदुओं को बांट देते थे जाति में, प्रांत में, भाषा में। अब वो उल्टा हो रहा है कि अब हिंदू एक हो रहा है और अल्पमत सब टुकड़े टुकड़े होने लग गए हैं। ट्रिपल तलाक के बाद सारी महिलाएं बीजेपी को वोट देने लग गए हैं और शिया भी अलग होने लग गया है। तो जो अल्पमत हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो टुकड़ा टुकड़ा हो रहे हैं और हिंदू कट्ठे कट्ठे होते जा रहा है। तो इसीलिए जो लोग हिंदू की बात करेंगे, इस राष्ट्र इतिहास की बात करेंगे, जो सही इतिहास है, जो वो कहेंगे कि इस देश को महान बनाना है, उसी को वोट मिलने वाली है। तो आज हमें इतना ही है, मैं भारतीय माने एक गर्व से कहना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ और मेरी अस्मिता हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी माने मैं हिंदू हूँ या मेरे पूर्वज हिंदू हैं। तो माने दूसरे धर्म के लोग हो सकते हैं, उनका तो हिंदू कभी नुकसान नहीं कर सकता। इस देश में पारसी, यहूदी सब रहकर गए हैं, रहते हैं, कि कोई नुकसान हमने नहीं किया। जो हमारे ऊपर आक्रमण किया उनका तो हमने जवाब दिया, परंतु जो धर्म ने हमारे साथ एक समन्वय के साथ रहे, वो सबको हमें छूट देते हैं। कोई और देश में ऐसा आपको मिलेगा नहीं। उदाहरण, यहूदियों को तो सब दुनिया में मार काट हुई थी और हिटलर ने तो उनको गैस चैम्बर में डाल दी थी, परंतु एक ही मात्र हिंदुस्तान में यहूदियों को, जूस को हमने इस देश में रहने दिया, उनका मंदिर बना के दिया। और जब इजराइल की बनी और उसकी पहली पार्लियामेंट की मीटिंग हुई तो पहले प्रस्ताव उन्होंने पास किया और कहा, धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जहां यहूदियों के साथ नरसंहार नहीं हुआ। ये हमारी पहचान है। तो इसीलिए हम जब कहते हैं हिंदू, तो लोग डराने की कोशिश करते हैं, पर तो मैं कहता हूँ कि आप अपने असली पूर्वज मान लो तो फिर किसी को प्रॉपर समस्या नहीं हो सकती। भारत माने एक देश और एक मन, एक तन और एक दृष्टिकोण। ऐसे एक भारत बनाने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। जिस प्रकार के उद्बोधन की हमें कल्पना थी, उससे भी बहुत ये सूरत के लिए हमारे बीच में छात्र संसद के भी 3 विद्यार्थी हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर आप एक बार आएं और स्वामी जी का आशीर्वाद लें। ये बहुत अभूतपूर्व घड़ी है जिसके माध्यम से डॉक्टर स्वामी जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और युवाओं के सहयोग की बदौलत ये संभव हो रहा है, जिसकी वजह से आज ये सूरत में हमें ये मौका मिला, जिसके माध्यम से आज इतना बड़ा आयोजन करवाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री कृष्णा हेरिटेज ग्रुप को, जिन्होंने सबसे पहले, जब भी हमने प्रस्ताव रखा, सबसे पहले उन्होंने उस प्रस्ताव को मानते हुए मदद की, हमारी सहयोग किया। और लक्ष्मीपति साड़ीज का मैं सादर धन्यवाद करना चाहूँगा, फ्यूचर 9 ग्रुप का और Z&G ग्रुप का,
और मैं चाहूँगा कि गौरव सचदेवा जी जहाँ कहीं भी हो वो मंच की तरफ प्रस्थान करें। और इसके अलावा भी ग्राफिक लेमिनेट्स, हार्ले आर्ट ऑफ लिविंग, झलक इंटीरियर, टीकेएस इंटीरियर, सनराइज प्लाईवुड एंड हार्डवेयर, उड़ान ग्रुप, रेडियो पार्टनर में माई एफएम, सिटी तड़का, एसपीसी स्टूडियो, आई एम सूरत सिटी, हिमालय साड़ीज, पुरोहित थाली और क्रिस्टल पैलेस, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे बीच में 3 अतिथि ऐसे भी हैं जिनका भी हार्दिक हमारे ऊपर काफ़ी हमारे बीच में सहयोग रहा, उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। श्री जगदीश जी तावनिया जहाँ कहीं भी हो मंच की तरफ आएँ, विना सारस्वत और मुरली जी सारस्वत जहाँ कहीं भी हो मंच पर आए, डॉक्टर स्वामी जी का आशीर्वाद लें। यह अभूतपूर्व घड़ी है जिस घड़ी के माध्यम से आज हमें ये मौका मिला है। डॉक्टर स्वामी जी पिछले 3 साल पहले, जहाँ तक मुझे याद है 3 साल पहले एक चार्टेड अकाउंटेंट के प्रोग्राम में पधारे थे, उसके बाद पुनः सूरत में आने का सौभाग्य 3 वर्ष बाद मिला है। तो क्या पता 3 साल 4 साल और लग जाएं, लेकिन आज ये हमारे बीच में घड़ी है तो इसका पूरा फायदा डॉक्टर स्वामी जी के आशीर्वाद के स्वरूप में लिया जाए। जिन जिन के नाम लिए गए वो मंच पर आकर एक बार डॉक्टर स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं विशेष रूप से मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री SK वैष्णव जी को, श्रवण कुमार जी वैष्णव जहाँ कहीं भी हो वो मंच पर आएँ और डॉक्टर स्वामी का आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद।